Okay, welcome class for today's session, and we'll begin shortly. So before I begin, how many planners have studied some urban planning systems apparent in Pakistan, which are being applicable in Pakistan? So for this today's lecture, it would be very much new for the non-planners, but might be a repetition for the planners. So I in this lecture, I want planners to participate extensively because you are working in the field. Most of you are working in the field, and you might provide more valuable lessons in this system. I will be presenting some theoretical or legal aspects or institutional aspects, but the field problems will be highlighted and can be highlighted by the planners working in the field, especially in the government sector. Any planner who is currently in the class, is now working in the government sector. Anyone? Please raise your hand. Okay, Taha, can you introduce which government department you're working with? Yes, Assalamu alaikum. Yes, sir, I'm working with the Federal Government Employees Housing Authority. Okay, great, great. So you have some kind of idea. Any Yes. other planner? Any other planner? Anyone else? Any other person who's working with the government? Might be engineer or architect. Anyone else? Okay, so we have less people who are working in the government sector in today's class. In previous sessions, there were students who were working with the government. Okay, so before I begin, let me just reintroduce some key terms in planning systems. And I hope some planners would like to help me with this. So I'll raise some questions, especially for the non-planners now. That do you understand what is land use and land cover? Anyone, any non-planner would like to talk about land use? What is land use? Anyone? Ahid? Sir, it is is it about when you specify a land for this purpose of usage, उस तरह इसको हम लोग मतलब देखते हैं कि ये land use है. Example? Sir, agriculture land अलग से, industrial land अलग से हो जाती है, housing land इस तरह से. Okay, definitely. So a land which is being used for a particular purpose or a function, like residential, commercial, industrial, that sort of thing. That is land use. Zoning. Mariam, what is zoning? Any idea? Mariam Fatma. सर zoning is basically आप divide करते हो एक जगह को according to typologies or functions. Okay, great, good. So zoning is basically allocation of different kind of services or functions and clustering them together or forming zone is called zoning for better development control. Okay. Building control. What does the word building control mean? Abrar. Okay, Harun. जी सर. What does it mean by building control? बिल्डिंग कंट्रोल सर ये दोनों टेक्नोलॉजी में लाइक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सेंस में भी आ सकते हैं लाइक ये तो बहुत जनरल टर्म है सर. हाँ, तो इससे क्या आपके जहन में क्या आता है? सर इसमें रूल रेगुलेशन भी आ सकते हैं लाइक रेजिडेंशियल में जैसे आपने 5 कनाल या 1 कनाल 10 मतलब में कितनी स्पेसेस छोड़नी है और लाइक वो चीजें आ सकती हैं. हमजा. सर ये बिल्डिंग कंट्रोल ये स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं होते जो कि सेफ्टी के लिए और हेल्थ इश्यूज के लिए होते हैं, ये वो तो नहीं है? Okay, so building control is basically when you're going to be implementing certain plan on ground
and regulating them according to. Yes, Mubashir, you want to add something? जी सर, मैं भी यही कह रहा था कि जो मास्टर प्लान है ना, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड, जो डिफरेंट लैंड यूसेज है उसको एज इट इज़ हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं, उसको सर बिल्डिंग कंट्रोल करते हैं, और इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर भी. Yes, at a very smaller scale, you are going to be implementing certain standards and planning regulations at a small scale in the with the background, or you can say with the support of master plan, is called building control. Now, this raises another question: what is master plan? What is master plan? Sher Alam. Okay, I will start calling out names and check who is available or not. Okay, so Heb, what does it mean by building control? Master plan. सर जो मास्टर प्लान होता है सर, वो बेसिकली आप एक जब कोई जगह आप डिफाइन कर रहे होते हैं, तो आप उसमें डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पैसेजेस वगैरह होंगे, यहाँ पे फ्लाईओवर होगा. तो जो आप पूरा जो मास्टर लेआउट बिफोर सेटिंग आउट टाउन आप जो फाइनलाइज करते हैं, उसके लिए सर वो मास्टर प्लान आ जाता है. Okay, that's also part of it. Yes. Okay, now planners, what is master plan? What is the definition of master plan? You did need 2 subjects of master planning. Yes, Nida. Nida, we can't hear you. सर मास्टर प्लान जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म एक प्लान है जो 20 to 25 ईयर्स का होता है, जो हम एक यूज करके हम इन फ्यूचर कहाँ कहाँ कौन कौन सी डेवलपमेंट होगी, किस किस पर्टिकुलर यूज की डेवलपमेंट होगी, हम डिफाइन करते हैं. Okay, Mariam. So master planning, according to what architects learn, is basically organization on a larger scale. Great. Shoaib. यस सर, जैसे मिस निदा ने एक्सप्लेन किया है, लॉन्ग टर्म लैंड यूज प्लान अलॉन्ग विद पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इसमें ये मैप के साथ रिटर्न स्टेटमेंट्स होती हैं प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और सेकेंडली ये रिजिड होता है मतलब इन नेचर. जैसे Okay. What does it mean by spatial planning? Anyone? Planners, I expect this from you. Planners, spatial planning क्या होता है? अगर आपको टर्मिनोलॉजी से क्लियर होगी तो हम लेक्चर आगे जा नहीं सकता हमारा. Rida Noor, what is spatial planning? स्पेशल प्लानिंग सर जिस तरह मास्टर प्लानिंग होती है उसी तरह से ही एक स्पेशल प्लानिंग भी होती है सर. इसमें भी यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं किसी भी जगह की, तो सर वो डिफाइन करती हैं कि मतलब जिस एरिया में उनका कंट्रोल था कि ये बायलॉज हैं, इसके मुताबिक ये लैंड यूजेस हैं, आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से प्लानिंग करनी है. Okay, so master planning is a larger term, and spatial planning is basically anything which is related to space on ground. किसी भी चीज की land use की let's say land की utilization in form of land use, zoning, anything which is spatial. So spatial planning is a broader term to regulate or to understand how to utilize certain spaces या locations. So spatial planning can master planning जबकि is predominantly focused towards only urban areas. Okay, and spatial planning includes urban, rural, peri-urban, local level, district level, regional level, provincial level. That is spatial planning, a larger scale which incorporates all different aspects. That is spatial planning. Land subdivision.
Planners? Yes, Shoaib. Sir, any housing scheme less than 100 canal area, or it is matlab again subdivided into two parts. Housing scheme less than 100 canal area, and other is a housing scheme with less than 40 canal area, sir. Okay. So land. What is red development or redevelopment? It's basically yes, Ahid. Sir, providing the basic facilities as per needed on that land. is if it's an industrial land तो उस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट करना है, हाउसिंग है तो फिर उस हिसाब से उसकी सीवरेज वगैरह. Yes, definitely. Infrastructure provide करना, उसमें facilities provide करना, उस तरीके की depending upon the master plan and land use. या let's say हमने define कर लिया कि इसमें इस तरह की development होनी है, just like Ahid said. So then we are going to providing infrastructure facilities. By infrastructure facilities, I mean road, electricity, gas, this kind of thing. Infrastructure, I think for civil engineers, sometimes they say the infrastructure means something which is underground. In urban planning, infrastructure means facilities, kind of electricity, gas, telephone, roads, this kind of thing. Yes, Ahid. सर अंडरग्राउंड जो होता है स्ट्रक्चर उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, सब और एंड सुपर स्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई लिंक नहीं है उसका. ओके, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं बेसिकली ब्रिजेस को, बड़ी बिल्डिंग्स को, आप उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, क्रिटिकल बिल्डिंग्स को. दैट इज आल्सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इन इंफ्रास्ट्रक्चर आर मींस समथिंग डिफरेंट. ये शोएब. यस सर, इन प्लानिंग जैसे आपने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते हैं वाटर नेटवर्क, सीवरेज और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा जो इंटरनेट का है और ड्रेनेज का है, बेसिकली इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं. यस यस. सो बेसिकली डिफरेंट प्रोफेशंस means different. Architects, what do you mean by infrastructure? Architects, in your profession, what is infrastructure? Yes, Mariam. Sir, infrastructure in our discipline is basically mostly general. के सब कुछ that comes into structure, any building, any bridges, सब कुछ infrastructure में आते हैं, any services. So larger term. We've talked about master planning. Okay, land use classification and reclassification. Planners, what is it? Yes, Shoaib. यस सर, ये लैंड यूज क्लासिफिकेशन और रिक्लासिफिकेशन की टर्म रिसेंटली पास में एलडीए ने इंट्रोड्यूस करवाई थी मेरे ख्याल में. तो बेसिकली ये है कि जो एग्जिस्टिंग एरिया है कि उसको मैप किया जाता है बेसिकली, और उसमें क्लासिफाई किया जाता है कि दिस इज कमर्शियल, दिस इज पब्लिक बिल्डिंग, और इस तरह करके क्लासिफाई कर देते हैं. इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. और रिक्लासिफिकेशन में हम ट्रेंड्स को देखते हुए फ्यूचर के लिए लैंड यूज हम असाइन कर देते हैं कि ये वाला एरिया कमर्शियल हो सकता है इन फ्यूचर और ये नहीं हो सकता. बेसिकली ये गुलबर्ग लाहौर में प्रैक्टिस हुई है बेसिकली. बिल्कुल. यस, लैंड यूज क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ 2009 वर इंट्रोड्यूस्ड एंड दे वर प्रीडोमिनेंटली गेयर्ड कि आपका जो पूरा मास्टर प्लान है वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि आप ओवरऑल तो जोन बना देते हैं रेजिडेंशियल, ये कमर्शियल एरिया, ये रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर भी कुछ कमर्शियल हब्स होते हैं. सो टू उनको बेसिकली रेगुलेट करने के लिए रिक्लासिफिकेशन बनाए गए थे, एंड फॉर टू असेस और बेसिकली गिव सपोर्ट टू द कमर्शियलाइजेशन पॉलिसीज कि कौन से रोड कमर्शियल करने चाहिए डिक्लेयर और कौन से नहीं करने चाहिए. So this was predominantly kind of purpose behind this reclassification. Okay, any engineer or architect or if any other environmental discipline, if we have any student, are you clear about these terminologies before I proceed with the proper lecture? Yes, Ahid. सर zoning एक लैंड सब डिवीजन और ये जो लैंड यूज क्लासिफिकेशन एंड रिक्लासिफिकेशन, ये तीन तरह टर्म्स दोबारा बता दीजिएगा. ओके, जोनिंग व्हिच वन सर? जोनिंग, लैंड यूज और क्लासिफिकेशन और सर ये लैंड सब डिवीजन. ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट अ सर्टेन एरिया, आप जिसको डिजाइन या जिसके लिए स्कीम नहीं बना सकते या मास्टर प्लान नहीं बना सकते, छोटा रकबा होता है उसका, जिसका एरिया जितना आई थिंक शुएब आल्सो मेंशन अबाउट 1 कनाल, 100 कनाल से कम हो,
तो उसको लैंड को सब डिवाइड करके, जिसको हम प्लॉटिंग कहते हैं, जिसको हम कई दफा लैंड को सब डिवाइड करके प्लान बना के यू कैन एग्जीक्यूट दैट इज लैंड सब डिवीजन ऑथराइज्ड बाय द लीगल गवर्नमेंट. यस मुबशिर, यू वांट टू ऐड? सर अभी ये 100 कनाल से ना सर 140 कनाल पे चला गया है इसकी लिमिट. Okay, good. So 140 canal, okay, nice. That is land subdivision. Zoning मास्टर प्लान लार्जर स्केल पे होता है, और मास्टर प्लान के अंदर बेसिकली जोनिंग का एक कंपोनेंट होता है जो रेगुलेट करता है कि कौन से एरिया में किस तरह का लैंड यूज इंप्लीमेंट करना है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल स्टेट, वो कैसे करनी है. एंड लास्टली वाज योर लैंड यूज क्लासिफिकेशन. दैट इज अ लोकल एरिया जहां लेट्स से आपका एस्टैब्लिश बिल्टअप एरिया पुराना शहर बना हुआ है, वो मास्टर प्लान में डिक्लेयर है कि जी ये रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन वहां जब देखते हैं लोकल लेवल पे वो रेजिडेंशियल एरिया बजाय कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा हो रही हैं, तो उसको हम रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए, उस एरिया ऑलरेडी कमर्शियल है उस पर हम टैक्सेशन के लिए कह लें, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम कर देते हैं उस एरिया को डिक्लेयर कि इस प्रॉपर्टी जो अलोंग दिस रोड है दैट कैन बी कमर्शियलाइज्ड. commercialization policy का anyone idea? Basically plot का जो 20% I think, right, if I'm not wrong, planner 20% है right now, the cost 25%. 25%. So 25% of the plot की जो वैल्यू होती है उसको अगर आप गवर्नमेंट को पे करेंगे तो आपका प्लॉट फ्रॉम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो कमर्शियल कन्वर्ट हो जाएगा देन यू कैन कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग ऑन दैट. अदरवाइज कमर्शियल बिल्डिंग की इजाजत नहीं होगी उसकी कंस्ट्रक्शन की. सो दैट इज व्हाई लैंड यूज लैंड क्लासिफिकेशन एंड रिक्लासिफिकेशन रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड. यस अरहम. सर मैंने जोनिंग के बारे में पूछा था बट वो आपने बता दिया, वो क्लियर हो गया. ओके ठीक है. अहीद. सर जोनिंग और लैंड यूज, मतलब जोनिंग में हम बेसिकली एक स्पेसिफिक यूज को हम लोग कर रहे हैं कि ये लैंड इस यूज के लिए है, तो सर लैंड यूज भी हम इसीलिए इसी टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, तो इनके ये आपस में लिंक्ड है या क्या इनका सीन है सर? बेसिकली होता है जोनिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग. लैंड यूज एंड जोनिंग प्लानिंग इकट्ठे साइड बाय साइड करते हैं. जोनिंग इज बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड यूज एंड zoning is a part of master plan overall city ka. These are some different concepts. So land use is basically, zoning is one of the same thing you can say. Land use planning basically is basically zoning. Okay, now let's proceed with today's. Now ab jo masla aata hai, yes Taha, you want to add something? Taha? Can you hear me? Yes sir. Hello? Yes Taha. Yes sir. Yes Taha. Okay. अच्छा सर, इसको मैं एक चीज को बस कंफर्म करना चाहता था. स्पेशल प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग ऑलमोस्ट हम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ी फिर भी हमारे में एम्बिग्यूटी है. तो मैं एक्चुअली कंफर्म ये करना चाह रहा हूँ कि स्पेशल प्लानिंग आप क्या ये कह सकते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट है, उसकी बिना पर स्पेशल प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो मास्टर प्लान या आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान या स्ट्रक्चर प्लान या बैरियर प्लान ये उसके टूल्स हैं स्पेशल प्लानिंग को अचीव करने के लिए. क्या हम इस तरह कह सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली. बेसिकली स्पेशल प्लानिंग इज at the larger scale it incorporates all of them. So yes, but that plan, अगर आपका कोई let's say आपका कोई प्लान है जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान, जो कि जी हमने इकोनॉमी रेगुलेट करनी है, समथिंग लाइक दैट. स्ट्रेटेजिक प्लान है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसको मास्टर प्लान को हम अक्सर विजन प्लान भी कहते हैं. तो कोई स्ट्रेटेजिक प्लान आप लॉन्च करने लगा रहे हैं लेकिन उसमें लैंड का कोई लेना देना नहीं है, फिर वो स्पेशल प्लानिंग नहीं होगा. स्पेशल प्लानिंग बेसिकली यूटिलाइजेशन, और लैंड के ऊपर कोई भी काम करना चाह रहे हैं, दैट इज स्पेशल प्लानिंग. ओके, अब हमारा जो मकसद है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, एंड विच इज द बेस्ट सुटेबल फॉर आवर कंडीशंस. वो कौन सा हो सकता है? सो उसके हम चाहते हैं सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. ओके, एवरी area of Pakistan that needs to be sustainable, especially focused towards urban because of the growing need of growing impact of urbanization in the world. Okay, we also call that cities are basically economic hubs
or yes, economic hubs of the country. So all of our focus is towards let's manage this urbanization. So that raises the questions that how many urban areas in Pakistan? According to census, we use census as the tool. Our number of urban settlements, declared urban settlements, are 235, which increased to 236 gradually. And as of now, we have 624 urban settlements, which includes towns, medium cities, metropolitans. So different hierarchies. So different type of cities are already there. I hope some of you might have heard about Ekistics concept of settlement hierarchy. Like it grows from hamlets, villages, towns, cities, metropolitan, megalopolis. So this is a hierarchy how a city, depending upon the population. So according to the census, there are 624 urban areas, including small cities, medium cities, big cities. So urban areas. And what is the character? What is the population sizes of these? So you can understand that first of all, some of us, we don't have enough data that how urban area declare ho chuka, but we don't know how much population it is. It has according to the census. And most of our cities are like lying around, it's 25,000 to let's say the green area, 25,000 to 50,000, and then 10,000 to 25,000. And now gradually, if you have seen that the metropolitan area with more than 1 million population, metropolitan, if we can, now different people define metropolitan as different, like 1 million or maybe 10 million. So an area metropolitan, if I define it into 1 million, you have seen that that city has grown dramatically. From 51 to 2017, the biggest growth in number of city centers with a population more than 1 million are increasing dramatically. And similarly, you can see some are increasing and some are decreasing. Now, where there are the more urbanized centers in the provinces of Pakistan. So just like this, Punjab and Sindh shows the highest percentage of number of urban settlements comparatively to the whole country. Any question till now? Anything to add? Okay. Now 624. Remember 624 settlements. These are the location of these settlements. How many have some kind of plan or not? Yes, Arbaz. अस्सलाम वालेकुम सर ये पिछले 2 स्लाइड्स जो है ना इसकी जरा समझ नहीं आई किस कंसेप्ट में हम उस पे बात कर रहे थे थोड़ा सा ये पिछले भी सर उसमें ओके सो बेसिकली टेम्पोरल चेंज इन सिटी साइज बेसिकली आई एम टेलिंग अबाउट कि एक शहर जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है शहर उसकी पॉपुलेशन साइज कितना अकॉर्डिंग टू ईच सेंसस इस सेंसस में इस सिटी की इतनी पॉपुलेशन थी इस शहर में इस सिटी की इतनी पॉपुलेशन थी तो उस ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी बेस्ड एनालिसिस है बेस्ड ऑन जितनी डिक्लेयर होती रही गवर्नमेंट ने और ये लास्ट जो स्लाइड थी हमारी लेट्स से 51 में 235 है 235 डिक्लेयर्ड अर्बन सेटलमेंट्स है वो 235 को प्लॉट किया मैंने 235 को मैंने ये प्लॉट किया 1951 में इसके मुताबिक हमारे पास इतनी सेटलमेंट्स हैं मेट्रोपॉलिटन देखें 51 में हमारे पास प्रोबेबली 2-3 मेट्रोपॉलिटन थे 2 या 3 ही थे जिसमें ऐसे शहर थे जिसमें सिर्फ 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन थी लेकिन ग्रेजुअली 2017 में देखें देयर आर मोर देन 100 सिटीज जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है इन 2017 सो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि एक शहर के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी ज्यादा हो चुकी है दैट इज द इस स्लाइड में क्लियर अरबाज अच्छा इस स्लाइड में बेसिकली बताना चाह रहे हैं इसको सिर्फ डिवाइड कर दिया प्रोविंस वाइज कि कौन से प्रोविंस में कितने सिटीज हैं सिंपल और उसमें कितने सिटीज नंबर इंक्रीज किए हैं डिक्लेयर किए गवर्नमेंट ने बेसिकली क्लियर और आई मीन स्टिल डाउटफुल अरबाज जी सर क्लियर हुआ ओके ओके प्लीज यस समद
सर मैंने ये पूछना था कि ये सेटलमेंट्स की आपने जो बात की 624 सेटलमेंट्स, तो ये सेटलमेंट्स किस तरह से डिफाइंड है सर? एक सिटी के अंदर हम देखें तो सेटलमेंट हम किसको कहेंगे? उसके रेजिडेंशियल एरियाज को कहेंगे या किस हिसाब से डिवीजन? ओके, उसके लिए मैंने आपको सोर्स दिया हुआ, गो टू द सोर्स एंड यू कैन इजीली फाइंड। ये गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करके दिए हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस में, जो आइडेंटिफाई करते हैं अर्बन रूरल एरियाज, वार्ड सिस्टम वगैरह, जो आई विल गो इनटू द डिटेल आफ्टरवर्ड कि किसको अर्बन कहते हैं किसको अर्बन नहीं कहते। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कि यहाँ अर्बन डिक्लेयर कर देंगे तो उसका उस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आ जाएगा। हमारे पास ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसको अर्बन कहते हैं, किसको पेरी अर्बन कहते हैं, किसको रूरल कहते हैं। हम कहते हैं एन एरिया विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन एज वेल एज एक एरिया जिसमें अर्बन फीचर्स हों, तो उसमें मे बी हम डेंसिटी लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ सर्विस सेंटर, सॉरी सर्विस इंडस्ट्री। लेट्स से इसका मैं बताता हूँ। 3 क्राइटेरिया ले लें आप अर्बन रूरल को डिफाइन करने के। नंबर 1 पॉपुलेशन नंबर ले लें, नंबर 2 ले लें आप पॉपुलेशन डेंसिटी, और नंबर 3 ले लें एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। अगर तो आपकी 50% से ज्यादा आबादी उस एरिया में एग्रीकल्चर के साथ काम कर रही है तो दैट कैन बी रूरल, और अगर 50% पॉपुलेशन सर्विस इंडस्ट्री है, प्राइवेट काम कर रही है, सर्विस में काम कर रही है इंडस्ट्री में, दैट कैन, और वी कैन कॉल इट urban area. So these are some of the factors or indicators or characteristics which differentiate between urban and rural areas. ये हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, बट दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड किसको अर्बन कहते हैं किसको नहीं कह रहे। ओके, द मेन पॉइंट मैंने जो रेज करना था उन सब का कि ये जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए डिफरेंट 624 अर्बन एरियाज, उसमें से 445 roughly I can say 60% areas do not have any kind of master plan, any kind of spatial plan, which includes different types of plan, master plan, peri-urban plans, structural plans. These are some different kinds of plans. I'll discuss those as well. So आपके कुछ शहर हैं, 60% ऐसे शहर हैं जिसका फ्यूचर विजन ही नहीं, जिसको कोई मैनेज करने वाला नहीं, उनका फ्यूचर किस तरह से डेवलपमेंट होनी है, किस तरह से डेवलपमेंट कंट्रोल होना है, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान। पंजाब में प्रीडोमिनेंटली सिर्फ आप पंजाब में मिल रहे हैं और टू सम एक्सटेंट सिंध में, उसके अलावा पाकिस्तान में बाकी प्रोविंसेस पे कुछ भी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, किसी शहर का कोई प्लान नहीं है। जब प्लान नहीं है तो उसको शहर को मैनेज कौन करेगा, किस तरीके से मैनेज करेगा, इधर ये काम होना चाहिए, इधर डेवलपमेंट होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए। वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। So this is basically I'm telling you about the current scenario of Pakistan. और ये जो बाकी 179 settlements हैं, इसका भी अगर मैं ब्रेकअप देखूं तो more than 100 are expired, are old, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में वैलिड ही नहीं है। बाकी 60-70 बचते हैं, उनमें से 20 अप्लाई कर रहा है कोई, और ऑन ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है उसके फिर अपने इश्यूज हैं। So this is just I'm telling you about the gravity of the situation regarding sustainable urban development in Pakistan. शहर पाकिस्तान में क्यों नहीं मैनेज हो रहे? Yes सरबाज। सर पाकिस्तान में ऐसे कितने सिटीज हैं जो अर्बन जो मास्टर प्लान पे उस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, लाइकवाइज इस्लामाबाद से हटके? देखिए मास्टर प्लान तो एग्जिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन्स में, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, आपका रावलपिंडी, मे बी कोई और भी आपके सियालकोट वगैरह का भी मास्टर प्लान बना हुआ है। फिर उसमें जो क्वेश्चन आता है कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है, कितने ट्रू स्पिरिट में हो रही है, वो एक अनदर एक डिस्कशन है, अनदर एक लेट्स से हाइपोथेसिस है कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना इंप्लीमेंट हो रहा है ऑन ग्राउंड। ऑफ कोर्स जो आपका मेरे ख्याल में क्वेश्चन वो ये है बेसिकली कि इसमें से 179 में से मास्टर प्लानिंग अप्रोच कौन सा यूज करते हैं, स्ट्रक्चर प्लान कौन सा इंप्रूव करते हैं, पेरी अर्बन स्ट्रक्चर प्लान को या कोई आउटलैंड डेवलपमेंट प्लान को कौन फॉलो करता है। So these are some different types. I'll go those in detail. So the main problem is right now is कि हमारे पास लोकल लेवल पर, सिटी लेवल पर तो हमारे पास प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर या प्रोविंशियल लेवल पर हमारे पास कोई एजेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही जो टाउन प्लानिंग को इंप्लीमेंट करवाए, जो कोऑर्डिनेशन करवाए बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स।
अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ लाहौर का इम्पैक्ट शेखपुरा, रावलपिंडी, सॉरी शेखपुरा, कसूर, फैसलाबाद के आउटस्कर्ट्स तक उसका इम्पैक्ट जाता है। वहां के लोग ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान, सॉरी लाहौर, टू गेट जॉब एंड अवेल डिफरेंट फैसिलिटीज। लेकिन लाहौर का मास्टर प्लान सिर्फ लाहौर को गवर्न कर रहा है, उसके बाहर नहीं गवर्न कर रहा। जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैसलाबाद एंड लाहौर, एक दूसरे के शहर के डायनामिक्स, चलें ये तो हम दूर जा रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसके डायनामिक्स एक दूसरे पे इतने इंटरडिपेंडेंट है ये लोग, इतनी ये सिटीज एक दूसरे पे, कि हमें कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इनकी इंटरेक्शन को रेगुलेट करे या मॉनिटर करे, या उसके लेट्स से उसकी जो इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करे, उसको एफिशिएंट बनाए। इस तरह की कोई एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। सो देयर इज नो प्लानिंग एजेंसी or urban planning agency at your regional and national level. Clear? Any question about this? Anything to add? You can just stop me and raise your hand. Okay. So right now, our biggest challenge is unplanned urbanization. Urbanization, uncontrolled urbanization, haphazard urbanization, leapfrog urbanization. So these are some different terminologies which falls under the unplanned urbanization. Urbanization, if it is not integrated, if it's not collaborated, it's not connected with the city, it won't be efficient. Like, okay, I'll go in the examples again in the next slides. So now, depending upon the 179 development plans, there is again a question: how much result have they produced? Are they efficient? Have they been efficient enough? Were they implemented on ground or not? And if it was implemented, how much was the impact of those master plans? Like, were they able to predict, compensate, or adapt to the continuously evolving situation of urban areas or not? So it has been hypothesized that they have failed to produce. A study on major cities of Pakistan revealed that that had no potential, or you can say no visible impacts of the master plans. Okay, the main point is again legal support, institutional setups, and presence of a effective development plan are the key issues which can help us solve this problem, the unplanned problem. हमारे पास पहले होने चाहिए institutions with technical and you can say financial capabilities. Number one. Number two, legal support, rules and regulations हैं जो उसको support कर रहे हैं, जो उस institution को power दे रहे हैं, जो implementation की power दे रहे हैं उसको. And number three, एक vision plan या development plan जिसको follow करके institution उसको on ground implement करवाए. These are the key things which can help us achieve sustainable urban development. Yes, Arbaz. सर ये हमीद और नदीम जो आपने देखा है सर, इसकी जरा एक्सप्लेनेशन करिए। वो टाउन प्लानर्स थे कि क्या कोई फिलैंथ्रोपिस्ट ने? Philanthropist, why? What nice. Taha, yes. एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन है इस बारे में। इसमें आपने लिखा कि 1960s से मेजर सिटीज के प्लान बनने शुरू हुए। तो 1960s में आई अंडरस्टैंड के सीडीए का इस्लामाबाद का मास्टर प्लान 1960s में बना। बाकी एलडीए एक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट 1975 और 1976 रिस्पेक्टिवली हुए। तो 1960s में फिर हमने कैसे, अगर हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क नहीं था तो हमने कैसे उनको स्टार्ट किया? ओके, थैंक यू। ओके अरबाज, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, डॉक्टर हमीद और डॉक्टर नदीम, right? They are the teachers. They are my teachers as well. They are basically dean of architecture and at CRP Lahore, City and Regional Planning के ये teachers हैं, professors हैं. Yes. So that I hope it answers your question. बाकी आपको मैं reference दे दूंगा. You can follow and read the paper. Yes, Arbaz.
सर इनका कोई रिसर्च पेपर है या इन्होंने कोई रिसर्च बेस पे ये किया हुआ था? यस, आपको मैं इसका लिंक दूंगा पूरे पेपर का, आप डाउनलोड करके पढ़ लें। आपको लिंक दिया हुआ पेपर की इस प्रेजेंटेशन के एंड पे, बल्कि मैं आपको डाउनलोड करके मैं रीडिंग मटेरियल में ऐड कर दूंगा ये। नहीं सर, इतना ज्यादा कोर्स ना करे सर, बस बोल दे जल्दी जल्दी से, बस हमें समझ आ जाएगी। अच्छा ठीक, ओके। और ताहा का क्वेश्चन था कि 1960s से आपने 1960 लिखा हुआ है, जबकि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस आए हैं 70s में, 75 में हमारे पास इंस्टीट्यूशंस बने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द MAO, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1960, गिवन वास बाय द ब्रिटिश। आपसे पहले लेट से 1970 से पहले शहर किस तरह मैनेज कर रहे थे? तब आपकी कॉर्पोरेशनें होती थी, डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश टू रेगुलेट एरियाज। सो MAO, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ 1960 मौजूद था, जो रेगुलेट कर रहा था आपके शहर की डेवलपमेंट को। MAO क्लियर? यस सर। बट ग्रेजुअली जब शहर बढ़ते जाते हैं तो आपके पुराने ऑर्डिनेंसेस, पुराने एक्ट्स या फ्रेमवर्क्स, दे आर नॉट मोर एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द लेट्स से increasing size of the population, increasing needs and demands of a citizens, or maybe some new technological advancements, or changing culture, urban culture in an area. So this, इसकी वजह से हमारे जो plans हैं वो support नहीं करते। We have to upgrade it, we have to update it. So पुराने जो MAOs वगैरह में एक्ट में बात कर रहा हूँ, उसमें मास्टर प्लान वगैरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे जो लेटर आए थे। So let's talk about the regulatory frameworks. What are the different types of approaches to manage a city? Right now, okay, ये हम बात कर रहे हैं, these are some different plans जो 179 I think जो पीछे मैंने बताए थे आपको, उसमें से जो distribution है कि out of 179 how many are master plans, how many are ODPs, outline development plans, how many are strategic and how many are structural plans. So ग्रे एरिया तो आपने देख लिया, ग्रे प्लॉट्स जो जिनके पास प्लान है ही नहीं, बाकी रह गए मास्टर प्लान्स। मास्टर प्लान्स देखें, पंजाब में मास्टर प्लान में फैसलाबाद और लाहौर का बना हुआ है मास्टर प्लान, एंड रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, राइट, ये मास्टर प्लान है। जबकि नीचे सिंध में है, सिंध में लाहौर, ये सॉरी पंजाब में बेसिकली मास्टर प्लान आर फॉर द मेट्रोपॉलिटन, जबकि सिंध में किसी भी शहर का अगर वो बनाते थे प्लान तो उसको मास्टर प्लान कहते हैं वो। सो देयर इज सम आल्सो डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इसी तरह KPK में देखें तो आपको पेशावर का मास्टर प्लान मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन इज आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स। ये प्लान्स बेसिकली आपके हाउसिंग एंड फिजिकल, नाउ डिफंक्ट हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग डिपार्टमेंट का होता था डिपार्टमेंट, लेट्स से जो आपकी हाउसिंग को करता था और फिजिकल डेवलपमेंट को एनफोर्स करता था। That used to exist at the province level at Punjab, and they made spatial plans for small cities. जहां master plans नहीं applicable थे, वहां उन्होंने outline development plans बना दिए, mostly geared towards let's economic development या agriculture development की तरफ ज्यादा, with emphasis to safeguard your agriculture areas. अब वो housing and physical department खत्म हो चुका है। Now उनके जो प्लान्स हैं वो आई थिंक 80s या 90s में वो खत्म हो गया था डिपार्टमेंट। उसके जो प्लान्स हैं नाउ दे आर नो मोर फंक्शनल, या ऑन ग्राउंड उसकी लिंक नहीं बनता, लेकिन स्टिल दे आर अ बेस मैप फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एक्सटेंशंस। तो उसको अभी भी प्लानर्स आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स को रखते हैं अपने पास कि उस प्लान में जो विजन बनाया गया था या सोचा गया था, मे बी नाउ वी कैन यूज दैट टू एक्सट्रापोलेट व्हाट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट वी वांट टू सी इन अ सिटी। ODPs का बड़ा यूज करते हैं वर्ड, आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स। देन दोज आर पेरी अर्बन स्ट्रक्चर प्लान्स, दीज वर मोस्टली geared टू enhance the create linkages, रूरल अर्बन लिंकेजेस। आपने सुना होगा कि हाउ टू enhance, because rural urban are basically very much interdependent, flow of information, services, goods. रूरल अर्बन लिंकेजेस में अगर किसी ने पढ़ा हो तो बेसिकली वी वांटेड टू strengthen the link between urban and rural areas because of their interdependencies. उन links को with focus on road connectivities, economic integrated economic development,
these sort of things helped us in these peri-urban plans, especially in the outskirts, which led to strategic development plans. Now these were strategic development plans basically होते हैं एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. Now strategic development plan might be of economic development. किसी एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो हम एक strategic development plan बनाते हैं. And some areas which were not declared anything, like उन्होंने अपना एक प्लान बना लिया था, उसको स्ट्रक्चर प्लान भी लोग कहते हैं. Okay, so these are some different types. मैंने I think अगर लिखी हैं तो okay, so these are some different types of plans. More or less इनमें जो approaches होती हैं, I'll go into in detail कि वो कौन सी approaches हैं. हम इनको mix करते हैं. ODPs को, structure plans को, master plans को आपस में mix करते हैं. They are conceptually different. क्या हो रहा है कि देखें, ये तो हम इवन पाकिस्तान लेवल में बात कर रहे हैं कि हमारी जो प्लान्स थे, पहले तो प्लान्स एग्जिस्ट नहीं करते, और जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें इतनी डिस्पैरिटी है, उसमें इतना फर्क है कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं आती. ओके, सो उसके लिए हमारे वो कब पॉसिबल है जब हमारे पास कोई रीजनल लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पे एक अथॉरिटी एग्जिस्ट करती होगी जो ये चीज इंप्लीमेंट करवाए. That is basically has, because of inconsistency, it has kind of promoted an unintegrated or you can say unconnected development. सारा हर शहर अपनी मर्जी से डेवलप हो रहा है या उस अथॉरिटी की मर्जी से डेवलप हो रहा है. So there is kind of a fragmented approach. Or then is multiplicity of institutions. एक शहर में इतने ज्यादा institutions हैं कि you struggle to make a plan which makes everyone happy. So इतने institutions होंगे तो जब तक एक उससे बड़ा स्पेशली रीजनल या प्रोविंशियल लेवल पर कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपके जो लोकल लेवल पर छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपने काम खुद करेंगे. उनमें आपस में इंटरेक्शन या लेट्स से कोऑर्डिनेशन बेसिकली कौन करवाएगा. ओके, दैट इज मल्टीप्लिसिटी एंड which is existing at local level, let alone at regional या provincial levels. So there are certain institutions Pakistan में एक शहर में, especially in your traditional cities like Lahore, Karachi, Faisalabad, CDA, Islamabad is an exception. Traditional cities में parallel institutions काम कर रहे हैं with same job responsibilities. सिर्फ एरिया फर्क है और इंस्टीट्यूशंस फर्क है, लेकिन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की एक है. एग्जाम्पल, शहर को मैनेज करने के लिए एक ही शहर में आपकी कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशंस हैं, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, और ये चंद आई वुड से इवन DHAs हैं. Now these are some institutions having the same responsibility how to manage a growth or how to manage the city. Same institutions, same job responsibilities, but different institutions and different areas of jurisdiction. तो जब हम उस सबको एक लेवल पर मास्टर प्लान तैयार करते हैं तो हमारे जो प्लान होगा वो कौन बनाएगा, कौन सी इंस्टीट्यूशन बनाएगी. जबकि क्योंकि किसी इंस्टीट्यूशन को भी दें तो उनके अपने एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, वो किसी और के लिए प्लान बना ही नहीं सकते. जब वो नहीं बना सकते तो आप जितना मर्जी अच्छा मास्टर प्लान सिटी लेवल में बना दें तो उसकी इंप्लीमेंटेशन ट्रू स्पिरिट में या ऑन ग्राउंड नहीं हो सकती. क्लियर? Anyone, planners, non-planners, if they want to add something, debate on something. मेरी बात पे यकीन ना करें, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ. So try to think critically by yourself. Anything to add? मैं ये बात कर चुका हूँ. Okay? Similar functions, no rules and regulation, and zero coordination. So these were the plans. What are action plans?
Planners, what are action plans? Yes, Arbaz. सर वही प्लान जो ऑन द स्पॉट करना होता है उसको एक्शन प्लान कहते हैं। शेप सर कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे अथॉरिटी या कोई भी डिपार्टमेंट अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जा रहा हो तो उसे एक्शन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। यस निदा। सर कोई भी एरिया जिसका जो है ना सब्जेक्ट पर्टिकुलर डोमेन लेके, अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है, कोई भी पर्टिकुलर उसका सब्जेक्ट है, उसको लेके प्लान बनाना और उसको एक एक्शन एरिया डिक्लेयर कर देना जो इमीडिएट उस पे एक्शंस भी लिए जाएं। यस मुबशर। जी सर, ये इसमें ये है कि जो अर्जेंसी बेस के ऊपर एक्शन एरिया प्लान्स बनते हैं, जिस तरह 1 साल के अंदर अंदर हमने ये कुछ करना है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म होता है एक्शन एरिया प्लान। तो जिस तरह को फ्लड का इशू आती है या कुछ इस तरह, तो सर ये इसलिए बने जाते हैं। यस, सो बेसिकली मास्टर प्लान जिस तरह किसी ने बात भी की थी 20 to 25 ईयर्स के लिए बनता है। तो उसके जो आपने ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशंस करनी होती हैं उसके लिए हम शॉर्ट टर्म एक्शन एरिया प्लान्स बनाते हैं जिसकी इंप्लीमेंटेशन करनी आसान हो जाती है, जिसमें डायरेक्ट टारगेट्स होते हैं। मास्टर प्लान में बेसिकली आपको होता है एक विजन होता है कि जी इस तरह शहर को देखना चाहते हैं, इधर डेवलपमेंट हो उस तरह हो, दैट इज अ विजन बेस्ड। जबकि एक्शन एरिया प्लान्स आर शॉर्ट टर्म ऑन ग्राउंड इजीली एग्जीक्यूटेबल विद स्पेसिफिक टारगेट्स एंड थिंग्स इन, लाइक फॉर एग्जांपल आपने मास्टर प्लान में कहा था कि हमने हेल्थ बेहतर करनी है। हेल्थ में हमने फेज 1 में कहा कि जी फेज 1 में हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाहिए अर्जेंटली, और छोटे फेज पे हमने बात की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस एरिया में क्योंकि बफर लगा के चेक करें इधर हॉस्पिटल कोई एग्जिस्ट नहीं करता एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, तो हमने हॉस्पिटल की एग्जीक्यूशन करनी है। दैट इज एक्शन एरिया प्लान कि हमने हेल्थ के सेक्टर में रह के फॉरन से जो चीज एग्जीक्यूट करनी है ऑन ग्राउंड, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज बेसिकली योर एक्शन एरिया प्लान। यस हारून। सर मैंने पूछना था ये इमरजेंसी प्लान इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होगा सर? अच्छा, इमरजेंसी प्लानिंग किस लिहाज से? लाइक अगर आप फ्लडी एरिया में है तो उधर हो, अगर अर्थक्वेक रीजन है, लाइक जो इमरजेंसी आपकी कोई भी आ सकती है, जिस तरह सर अभी ये पैंडेमिक आई है कोरोना, लाइक हमारे प्लान इतने अपडेटेड नहीं है। हमारे प्लान्स में फिलहाल DRR का जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इमरजेंसी प्लानिंग नहीं होती। लेकिन मास्टर प्लान लार्जली या ओवरऑल देखा जाए तो हम देख लेते हैं जी ये एरिया फ्लड प्रोन है या अर्थक्वेक प्रोन है कि नहीं है, लेकिन ऐसे DRR का या कोई कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट करता किसी भी मास्टर प्लान में। बिल्डिंग है, मतलब जिस तरह अगर आप बड़ी बिल्डिंग करते हैं लाइक उसमें फायर प्लान और लाइक इमरजेंसी एग्जिट लाइक इन केस ऑफ फायर और अदर इमरजेंसी, मतलब हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंपलसरी है। तो इस तरह सर ये मतलब अर्बन प्लानिंग में इस तरह कुछ होता नहीं है कि लाइक जब आप डिजाइन कर रहे हो तो उसके लिए आप मतलब ये एक प्रोविजन रखें कि ये चीज़ होनी चाहिए? ओके यस, मास्टर प्लान में कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमने लेट्स से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट या अर्थक्वेक रेजिलिएंट डेवलपमेंट करनी है, तो इसकी इंश्योर किया जाए। मास्टर प्लान में ये लिखा होगा, लेकिन उसकी इंश्योर कौन करेगा? क्या कहेंगे इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? वो अपने बिल्डिंग कोड्स बनाएगा। तो ऑन ग्राउंड जो आप बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स जिसमें हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, प्लानिंग कोड्स जिसमें हमें प्लानर्स बताता है कि ये कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि नहीं, आर्किटेक्ट फीडबैक इन वेंटिलेशन लाइट वगैरह, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होके वो एक कोड या मैनुअल बनता है या रेगुलेशंस बनती हैं जो इंस्टीट्यूशन ने इन्फोर्स करवानी होती हैं। So that is a part of institution's job, but it will not be a part of master plan. Master plan इतनी बारीकी में नहीं जाता। Master plan is more vision based and more like एक बता देगा कि शहर में फ्यूचर डेवलपमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, या ये जो इस सिटी की नीड्स हैं वो क्या हैं और उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, दैट इज इंस्टीट्यूशंस जॉब। इंस्टीट्यूशन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज बनाएगा, मास्टर प्लान उसको एक सिंपल अथॉरिटी देगा कि ये आप कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए बेसिकली। यस सर, क्लियर?
जी सर। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन, अच्छा 1960s में आपको जूम इन वर्जन नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके ओके, 1960 में हमारे पास छोटे लेवल पर हमारे पास ब्रिटिश की तरफ से दिए गए लॉज मौजूद थे जो हम यूज करके कंटोनमेंट बेल्ट, कंटोनमेंट बोर्ड्स या सिविल लाइंस डेवलपमेंट कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास जो टूल आया मास्टर प्लानिंग, ओडीपी और जोनिंग प्लान का जो प्रीडोमिनेंट टूल था फ्रॉम 60 टू 69 था, जिसके मुताबिक हमने लाहौर का पहला मास्टर प्लान, फैसलाबाद का मास्टर प्लान, रावलपिंडी का मास्टर प्लान बनाया था इन 1960s। 70s में भी हमने वही अप्रोच यूज की, मास्टर प्लानिंग, आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान, और हमने 70s टू 79 ये हाउसिंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट ओडीपीज बना लिए थे 24 एरियाज के। 24 नॉट मेट्रोपॉलिटन्स में मास्टर प्लान बन चुके थे, तो बाकी जो आपके मीडियम साइज थे, स्मॉल सिटीज थी, उसके लिए आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स बने थे प्रीडोमिनेंटली इन पंजाब ओनली। 80 टू 89 भी हमारी अप्रोच वही रही है और मास्टर प्लान हमने बनाया है अपडेटेड, क्योंकि 20 इयर्स का मास्टर प्लान था लाहौर का, फैसलाबाद का, रावलपिंडी का, देन वी नीडेड टू अपडेट इट। तो इस इरा में हमारे पास 80s टू 89 में हमारे पास क्वेटा का मास्टर प्लान बन गया, फैसलाबाद का अपडेटेड प्लान, लाहौर का भी अपडेटेड प्लान, और बाकी कुछ शहरों में और आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स बने। सो हमारे 70s टू 80s में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्लान्स बनना शुरू हो गए ऑन ग्राउंड, यानी ये चीज हमारे पास एक प्लान्स मौजूद हो गए स्टिल, बट दे वर वेरी लेस इन नंबर एज कंपेयर टू ओवरऑल। 90s में हमने और छोटे लेवल पे भी प्लान्स बनाने लग गए, हमारा मास्टर प्लान दोबारा रिवाइज होते रहे, एंड देन इन 2000s में आपके वही मास्टर प्लान टेक्निक यूज करते हुए हमने आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स जो रह गए थे पंजाब के ऑलमोस्ट सारे शहरों के बना लिए। मेजर जो आपके सेकेंडरी या आई वुड से मीडियम साइज सिटीज के ऑलमोस्ट सबके मास्टर प्लान, आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स मौजूद हैं। इफ यू वांट टू विजिट यू कैन डाउनलोड एंड फ्रॉम पंजाब, if you just search it, it's available online. Outline development plans of all districts of Punjab. So हमारे पास कराची का मास्टर प्लान भी आ गया, लाहौर का अपडेटेड प्लान भी हो गया, and then KPK also started making some kind of plans, but they were very much pre-urban in it, like peri-urban. Okay, so the KPK में basically structural plan या connectivities पे या agriculture areas पे ज़्यादा focus development हुई। Okay, and now हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लैंड यूज प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ शहर पे थे, एक अर्बन एरिया पे, अब हम कह रहे हैं कि व्हाई नॉट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डेवलपमेंट शुरू कर दें, एंड देन वी कैन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स। अब देखें हमारे पास जो मास्टर प्लान ऑफ 23 टाउन्स हैं, इसको मैं इस तरह कहूंगा, जिस तरह ये एक प्राइवेट स्कीम बन रही है कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, नाम उसका कैपिटल सिटी है लेकिन है वो एक टाउन या हाउसिंग स्कीम। इसी तरह कुछ एरियाज के इन्होंने मास्टर प्लान बना दिए थे, मास्टर प्लान, लेकिन वो मास्टर प्लान है नहीं, उसमें वो विजन नहीं है, उसमें 20 इयर्स की बात नहीं की गई। उन्होंने एक प्लान बना दिया कि इस तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसको वो मास्टर प्लान कह देते हैं। लेकिन मास्टर प्लान ट्रू स्पिरिट में क्या है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मास्टर प्लान इज अ 20 इयर्स फ्यूचर प्लान, इसमें आपने नीड्स आइडेंटिफाई करके उस लिहाज से डेवलपमेंट करनी भी है। छोटे से टाउन्स में, एजीके में, सिंध में छोटे से टाउन्स का उन्होंने करंट डेवलपमेंट प्लान बना दिया छोटे लेवल का, उसको वो मास्टर प्लान कह देते हैं, एंड दैट इज इन द ट्रू स्पिरिट नॉट मास्टर प्लान। So these are some kind of, so basically this is basically a timeline in which we have adopted different kind of plans across Pakistan. Different development plans have been tried to be developed, but predominated following the philosophies of master plan. Okay, अब हम जो मेन बात करना चाह रहे हैं वो है अप्रोचेस की। I think let's take a break 5 minutes and then I'll go, इस पे हमारा कवर काफी फोकस्ड एनर्जी होगी। So any question regarding
different, anything to add? Yes, Taha. सर आपने बताया हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो ये सर इसकी जुरिसडिक्शन इस डिपार्टमेंट की सिर्फ पंजाब तक थी या पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान में थी? पंजाब तक थी, पंजाब तक थी। अच्छा, तो आपने कहा कि ये 90s में ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये स्लाइड्स में एक्चुअली जूम आउट था, तो क्या उसमें 2000 में भी लिखा हुआ है कि 13 सिटीज में अर्बन डेवलपमेंट प्लान बने, तो ये फिर किस इदारे ने बनाए थे? ओके, ये हमारा हो गया था पंजाब सिटीज इम्प्रूवमेंट कोई बना था हमारा, PUC, आई डोंट नो व्हाट वाज इट कॉल्ड। एक इदारा बना था जिन्होंने रिवाइव करने थे पुराने मास्टर प्लान आउटबी जो आउटडेट हो चुके थे हाउसिंग के डिपार्टमेंट से, हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग डिपार्टमेंट से, वो अपडेट किए थे एक और एजेंसी, एक गवर्नमेंट की एक खास डिफाइन किया था अदारा, पंजाब समथिंग, आई ट्राई टू, मैं नाम आया ना मेरे ज़हन में तो आई लेट यू नो। एक और अदारा बनाया था, लेकिन वो टेम्परेरी था, जो इसके सिर्फ आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स को अपडेट कर रहा था। अर्बन यूनिट के साथ कोलैबोरेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया। यस मरियम। तो ये दो चीजें आप समझा देंगे फिर से, आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान और स्ट्रक्चरल अर्बन प्लान? ओके, पेरी अर्बन प्लान, जस्ट बाय द वर्ड इट मींस अर्बन एरियाज में जो पेरी अर्बन नहीं, आउटलाइन डेवलपमेंट। ओके, आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स में भी मास्टर प्लान की फिलॉसफी यूज की गई थी। इट वाज यूजुअली 10 इयर्स, वो 10 साल के लिए बनाया था। मास्टर प्लान 20 से 25 साल के लिए होता है, आउटलाइन डेवलपमेंट 10 इयर्स का होता है मोर लेस। बट इट इज बेसिकली मास्टर प्लान का, क्योंकि मास्टर प्लान एक मेट्रोपॉलिटन के लिए था और आउटलाइन डेवलपमेंट छोटे शहरों के लिए था, तो उन्होंने कहा छोटे शहरों के लिए 10 साल का रखें, क्योंकि 10 साल बाद ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसके लिए इतनी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। 10 इयर्स का आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान फॉर स्मॉलर सिटीज, उसमें भी मास्टर प्लानिंग की फिलॉसफी यूज हो रही थी, लेकिन सिर्फ क्योंकि इस एजेंसी ने बनाए थे उसने इसका नाम आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स कर दिया, जस्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम मास्टर प्लान ऑफ मेट्रोपॉलिटन। है दोनों डेवलपमेंट प्लान्स, लेकिन हमारे जो अर्बन प्लानिंग में यूज हुआ जाता है, अगर शहर मेट्रोपॉलिटन है वी कॉल इट मास्टर प्लान, अगर शहर छोटा है वी कॉल इट आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कहते हैं जी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान। अगर वो एरिया शहर के करीब है, लेट्स से कसूर, इस्लामाबाद, ये मैं बात करता हूँ इधर इस्लामाबाद की टैक्स, वो एक शहर नहीं है, लेकिन टैक्सला को जो हम प्लान बनाएंगे हम कहेंगे जी पेरी अर्बन स्ट्रक्चर प्लान, क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन के करीब है, वी जस्ट कॉल इट पेरी अर्बन प्लान स्ट्रक्चर, पेरी अर्बन स्ट्रक्चर प्लान। सो सिर्फ हम डिस्टिंग्विश करने के लिए हम काम करते हैं, लेकिन बैक एंड पे अंदर दोनों में मास्टर प्लानिंग की फिलॉसफी ही यूज होती है। यस ताहा, Taha, you want to add something? Any question? No, sorry, वो मेरा previously hand raised. It's fine. Yes, yes, Mariam. और सर स्ट्रक्चरल अर्बन प्लान? बेसिकली स्ट्रक्चर अर्बन प्लान भी हम उसको पेरी अर्बन पे या स्ट्रक्चर प्लान, जो मेन फिलॉसफी स्ट्रक्चर प्लान की वो है टू एनहांस द कनेक्टिविटीज और रीजनल कनेक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट एरियाज, इसको स्ट्रक्चर प्लान, एनहांसमेंट ऑफ कनेक्टिविटीज, लिंकेजेस। बट ऑन ग्राउंड स्ट्रक्चर प्लान मास्टर प्लान ही होता है। आपको आगे बताता हूँ, आगे फिलॉसफीज आएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, जो बेसिकली उसमें मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ यही समझाया गया है कि मास्टर प्लानिंग इज द ओनली अप्रोच एप्लीकेबल इन द वर्ल्ड, जो कि गलत है। पाकिस्तान में मास्टर प्लानिंग के अलावा भी अप्रोचेस दुनिया में मौजूद हैं which we can employ in case of Pakistan, and I'll discuss those in after the break. So it's 6:34. Again, any question before I go? Any question regarding Pakistani situation? And then we'll go more in depth. Clear? Okay. So सर इस स्लाइड को छोड़ जाएं आप यहीं पे। अच्छा चलें, खुली हुई कोई मसला नहीं। Okay, I'll stop the recording and I'll resume when I come back. So let's take a break.